ہم نے ایک سروے کروایا کہ لوگ جو ہیں جب کسی خاتون کو دیکھتے ہیں ایسے لوگ تو ان کی اپروچ اور رویہ اور سوچ کیا ہوتی ہے. کین یو امیجن دس تھنگ کہ ہیراسمنٹ از ناٹ کہ آپ یو ٹاک ٹو سمبڈی یو ڈو سچ جسچرز جس سے اگلا بندہ ہیراس انکمفرٹیبل ہو. اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کے لیے دو ہی چیزیں ہیں. ڈوز کیا ہیں, ڈونٹس کیا ہیں. تربیت از ایکولی امپورٹنٹ. سزا دے ان کو. واٹ اے بیوٹیفل اسٹیٹمنٹ وہ جسٹس منصور علی شاہ کی ہے, سپریم کورٹ کے جج ہیں. انہوں نے کہا کہ ارسپیکٹو آف اے وومنز کیریکٹر کنڈکٹ کسی کو کوئی حق نہیں کہ آپ اس کی تذلیل کریں, اور یہ گورنمنٹ کی ڈیوٹی ہے کہ اس کو پروٹیکشن پرووائڈ کریں. کیسے آپ ان چیزوں سے بچ سکتے ہو؟ آپ کو یعنی کہ بالکل آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ادر پرسن کین گو سو فار کہ وہ آپ کی جان تک لے سکتا ہے. ناؤ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ کا جو پیئر گروپ ہے دے پلے اے رول ان اٹ, دے الرٹ ایچ ادر. جب وہ نہیں کرتے these kind of incidents happen. It is very important to choose right friend who be sincere to you. Hi viewers, this is Nadia Sajid. We are very proud to have Almas Ravinda with us today. Assalamu alaikum Almas, how are you? وعلیکم السلام, بالکل ٹھیک ہوں. آپ خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک, اللہ کا شکر. آپ بتائیں, how is everything going? All good. صرف تھوڑی سی فرسٹریشن ہے جو ہمارے ارد گرد چیزیں آج کل ہو رہی ہیں. Looking at those problems which are getting increased every day by day, اور پھر لوگوں کو جو سلیوشنز اور ریلیف چاہیے ہوتا ہے which they expect from the government, which they expect کہ جو ادارے ہیں وہ اپنا رول پلے کریں گے, تو وہ تھوڑی سی فرسٹریشن پروفیشنلی ایز این انڈیویجول وہ رہتی ہے, اینڈ پرہیپس وی ہیو ٹو لیو ود اٹ فار اے لانگر پیریڈ. بالکل صحیح. آئی واز اوے فار اے وائل فرام پاکستان, اور جب میں واپس آئی تو بہت سے ایشوز, سوشل ایشوز کھڑے ہوئے ہیں جس کو لے کے سب لوگ بہت پریشان بھی ہیں, حیران بھی ہیں, اینڈ دے وانٹ ٹو نو مور اباؤٹ اٹ. سو اس کے بارے میں میں نے الماس سے جب ڈسکس کیا, سو وی جسٹ کیم اپ ود دس آئیڈیا کہ ہم مل کے ایک سیگمنٹ اسٹارٹ کرتے ہیں جس میں ایوری ویک وی کین ٹاک اباؤٹ دا سوشل ایشوز. So Almas, thank you so much for being part of it, and as a lawyer I think you can tell us much more about it. بالکل ایسی ہے, میں یہ چاہتا ہوں, اور یہ بڑا اچھا انیشیٹو جو آپ نے لیا. نادیہ, اویئرنیس بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے, اور ہمیں اس کے لیے ایفرٹ کرنی چاہیے کہ جو چیزیں ہو رہی ہیں ہم کیا کریں کہ ہم ان سے بچیں جو اچھی چیزیں نہیں ہیں, اور اگر خدا نخواستہ کوئی اس کا وکٹم بن گیا ہے تو اس کے بعد کا ہمیں کیا پروسیجر اختیار کرنا چاہیے. لوگوں میں ایٹ ٹائم اویئرنیس نہیں ہوتی. ٹائم بہت کروشل ہوتا ہے کہ اس ٹائم پیریڈ کے اندر آپ نے ایکٹ کرنے ہیں, اس کو رپورٹ کرنے ہیں, اور پھر بات کی فرسٹریشن جو ہے اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو آئی بلیو ان اے وے اٹس گوئنگ ٹو بی گڈ. اور پھر ناٹ اونلی دیٹ ہم اس کو لیگل پوائنٹ آف ویو سے یا باقی ساری چیزیں, ہمیں تو یہ بھی ڈسکس کرنا ہے کہ یہ واقعات ہوتے کیوں ہیں, اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے, اور اسے کیسے بچا جا سکتا ہے. لائک ایز اے فیمیل ابھی جو 2-3 انسیڈنٹ ایسے ہوئے ہیں سیڈلی ود وومن, آئی مین میرا مین یہی ہے کہ آئی وانٹ ٹو نو کہ مجھے اس سے کیسے بچنا ہے, اور اپنے فیملی کی جتنی بھی خواتین ہیں یا فرینڈس ہیں ان کو کیسے آپ اویئر کر سکیں. یو کین پریونٹ دس سچویشن. تو وہ اس کے بارے میں بھی آپ پلیز ہمیں تھوڑا گائیڈ کیجیے گا. اچھا نادیہ, یہ جو واقعات ہیں یہ بہت ایک افسوس کی سچویشن ہے, اور اس میں دو سائڈس ہیں جسے دیکھنا ہے. کہ ایک یہ ہے کہ جس کو وکٹمائز کیا گیا اس کا اپنا کنڈکٹ کیسے تھا, کیا اس نے کیا. میرے نزدیک وہ ارریلیونٹ ہے. میرے نزدیک جو لوگوں نے, جو پریڈیٹرز تھے جنہوں نے ان کو ٹارگٹ کیا, ان کو وکٹم بنایا, ان لوگوں کا بیہیویئر جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے میرے لیے کہ ایسا کیوں ہے, میری سوسائٹی میں ایسا کیوں ہے. بات یہ ہے کہ تربیت میٹر کرتی ہے. تربیت شاید جب ان لوگوں کی نہیں ہوتی, ہماری تمام تار کوشش یہ ہے کہ ہم بچوں کو اسکولوں میں لے کے آئیں, اسکولوں تک لائیں, ان کو ایجوکیٹ کریں. ہم اپنی وہ فگرز جو ہیں ورلڈ وائڈ دکھانے کے لیے کہ ہمارے ڈیجٹس جو ہیں وہ اتنے اوپر چلے گئے ہیں کہ ہم نے اتنے لوگوں کو, اتنے پرسنٹ لوگوں کو لٹریٹ کر لیا. لٹریٹ کرنا از ناٹ دیٹ ویری امپورٹنٹ جب تک آپ ان کو لٹریسی کے ساتھ ان کی تربیت نہیں کریں گے. اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ ان کو بتائیں. ہمارے یہاں پہ فرسٹریشن کا لیول یہ ہے کہ آپ حیران ہوں گی کہ آج سے کوئی 2 سال پہلے ہم نے ایک سروے کروایا, اور اس میں ہم نے بچے جو انگیج کیے وہ ایسے تھے جو کہ جنہوں نے ہائی اسکول سے پہلے اسکول کو چھوڑا ہوا تھا. دے سم آف ادر فار
एनी रीज़न कुड नॉट कंटिन्यू, और वो छोटे मोटे काम कर रहे थे। तो हमने 5 बच्चे इंगेज किए, उनसे पहले हमने खुद इंटरव्यू किया और फिर हमने उनको कहा कि यू गो इन जनरल पब्लिक और हमें ये डेटा जो है ये कलेक्ट करके दें कि लोग जो हैं जब किसी खातून को देखते हैं, ऐसे लोग तो उनकी अप्रोच और रवैया और सोच क्या होती है। नादिया, आप हैरान होंगे कि हमें ये पता चला कि जो लोग पार्क्स में जाते हैं, जो लोग मार्केट्स में जाते हैं, जो लोग बसों में बैठते हैं, जो लोग रोड साइड पे जाते हैं, उनमें से बेशुमार लोगों की इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज ख्वाहिश ये होती है कि वो गुजरते हुए खातून को टच कर लें। दे जस्ट वांट टू, एंड दिस इज काइंड ऑफ excitement and satisfaction they get out of achievement. this. It's a kind of achievement for them actually कि उन्होंने औरत को गुजरते हुए हाथ लगा लिया, उसको उसके बाजू को हाथ लगा लिया या any other body part। जब लोग इस माइंडसेट के साथ रह रहे हों और इस माइंडसेट को वो अचीवमेंट समझते हो, तो दीज आर द पीपल हु कैन गो टू एनी लिमिट प्रोवाइडेड दे गिव एन अपॉर्चुनिटी। वहां पे अगर उनको कोई इस तरह का मौका मिल जाता है तो ये तो आप रूटीन में, आज के दिन में हमारा यहाँ पे एक एरिया जहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, उसकी डायरेक्टर से मेरी बात हो रही थी और मुझे उन्होंने जो बात बताई, उन्होंने कहा कि हमारे पास एक खातून आई और उसने कहा कि फलां शख्स जो है वो मुझे हैरेस कर रहा है। तो शी सेड कि हमारे अब सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, हमने फ़ौरन उसको देखा तो वो शख्स जो है 4 ख़वातीन एक टेबल पे बैठी हुई हैं, वो अकेला उनके सामने वाले टेबल पे बैठ गया। अब सीसीटीवी कैमरास में ये पता चल रहा है कि ही इज स्माइलिंग एट देम। अच्छा, वो उसको इग्नोर करने की कोशिश कर रही हैं, तो उसने क्या किया कि उठ के खड़ा हो गया। अच्छा, अगेन उसने ऐसे वेव किया, फिर बैठ गया, उनके टेबल का चक्कर लगाया, उनमें से कोई एक वॉशरूम की तरफ गई तो उसके पीछे गया। उसने उनसे बात नहीं की, उसने उनको छूने की कोशिश नहीं की, लेकिन वो दूर बैठा टेबल पे उनको हरास किए जा रहे हैं। अच्छा, अब जब ये चीज हुई तो शी टोल्ड मी कि हमने इसको ऑब्जर्व करना शुरू किया तो हमें पता चला कि यहाँ पे तो हर तीसरा चौथा बंदा सामने वाले टेबल पे बैठ के यही कर रहे हैं, यू नो, वो स्टेयर कर रहे हैं आपको टारगेट कर रहे हैं, स्माइल्स दे रहे हैं, कहीं इशारे कर रहे हैं आपको। कैन यू इमेजिन दिस थिंग? हैरेसमेंट इज नॉट कि आप यू टॉक टू समबडी, आपका एक एग्रेसिव अप्रोच उसकी तरफ हो, आप उसको जाके छूने की कोशिश करें या आप उसको फिजिकली टच करने को। This again is a harassment sitting at a distance. You conduct yourself and you do such gestures जिससे अगला बंदा harass uncomfortable हो रहा है, uncomfortable हो रहा है। हमारे यहाँ पे ये माइंडसेट है, इस माइंडसेट को चेंज करने के लिए 2 ही चीज़ें हैं। या हम बुनियाद से, हमारा स्कूल सिस्टम आपने करिकुलम तब्दील कर दिया, भाई बड़ी अच्छी बात है, तरबियत पे बात कर रहे हैं आप, सोचा है कभी इनको बताने डूज क्या है, डोंट्स क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, अच्छा इंसान कैसे बनना है। आज आप कर रहे हो, आपके घर में अल्लाह ताला ने प्रोपोर्शनेटली रखा है ना, 50% से ज्यादा खवातीन है। यू डू इट टू somebody's sister or mother, somebody is going to do it to your sister or mother. Exactly. You know, who is going to tell them this? वो सब ये सोचते हैं कि उनका घर सेफ है, बाकी सबको वो टारगेट करेंगे। तरबियत इज इक्वली इंपॉर्टेंट। मैं ये कहता हूँ कि जहाँ पे आपने 5 या 7 या 10 टीचर्स रखे हुए हैं स्कूल में जो आपको पढ़ा रहे हैं, लिटरेट कर रहे हैं, आपको एजुकेशन, प्लीज हैव वन, मे बी साइकोलॉजिस्ट जो आपको इन टॉपिक्स पे रेगुलरली बताए। इट मस्ट बी मैंडेटरी कि हर, वेदर इट्स अ गवर्नमेंट स्कूल और अ प्राइवेट स्कूल और व्हाटएवर। एंड इट फ्रस्ट्रेट मी, आबादी बढ़ती जा रही है ना, 23-24 करोड़ लोग हैं और उसमें ये वाले जो हैं, आज से अगर कुछ साल पहले अगर मैं इनको एक सेगमेंट के तौर पे लूं, ये 2 करोड़ थे, 2.5 करोड़ थे, तो आप 5 करोड़ हो गए हैं। True. ये 20 जो हैं ये बढ़ते जा रहे हैं। You're trying to say कि ये वो लोग हैं जिनको सही एजुकेशन नहीं मिली। So what about those people? एजुकेशन, बहुत अच्छी तरबियत, एजुकेशन भी मिली है, तरबियत भी मिली है, उनके स्कूलों में अच्छे साइकोलॉजिस्ट भी हैं, और वो जब कुछ ऐसी हरकत करते हैं, यू थिंक कि वो लोग नहीं करते। ये साइकोपैथ बिल्कुल हैं। हाँ। हमने बढ़ते नहीं जा रहे साइकोपैथ। मैं आपको बताऊं उसका, अभी रिसेंटली वो डिड एक हमारा, मैं इंडिपेंडेंट, मैंने एक इशू हाईलाइट किया था। ग्लोरिया जीन्स फेज 5 में ये इंसिडेंट हुआ कि जहां पे एक शख्स ने अपेरेंटली वेरी वेल एजुकेटेड फ्रॉम अ गुड फैमिली, अब तो मुझे पता चला है कि फ्रॉम एन वेरी इन्फ्लुएंशियल फैमिली, जिस तरह हर कोई उसको बचाने के लिए भाग रहे हैं और दौड़ रहे हैं और कोशिशें कर रहे हैं, पुलिस से लेके हर एजेंसी तक उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है।
he in a very aggressive way approached a very decent lady. उसने उससे मिलके उसको जिस तरीके से उसने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, और फिर उसके बाद जब आपने ये बात जो कर रही हैं कि लुक हाउ एडमेंट दिस गाय वाज, कि जब पुलिस को बुलाया गया तो उसने कहा बुलाओ, कौन क्या बिगाड़ेगा मेरा। ट्रू। जब उसको पुलिस थाने लेके गए तो उसने एसएचओ को कहा कि वो उसका नाम पता नहीं क्या था एसएचओ का, उसने कहा कि 2 पर्चा, मैं देखता हूं मेरा क्या बिगाड़ता है। जब उसका पर्चा भी नहीं दिया जा रहा था तो देन आई टुक अप दिस होल इशू, और फिर अल्टीमेटली जब पर्चा दर्ज हुआ तो पुलिस ने उसको ये प्रोटेक्ट किया। उन्होंने कहा कि जी नामालूम, सामने बंदा बैठा हुआ है, पकड़ के लेके आए हुए 4 घंटे, वो कहते हैं नामालूम शख्स है, उसका नाम शायद नामालूम हो कि उसे नाम, यू नो दीज काइंड ऑफ पीपल आर मोर डेंजरस, दे आर वर्स देन दोज पीपल। ठीक है, रीजन बीइंग कि उनको तो आपने जो मीनार पाकिस्तान में हुआ, आपने ये कहा कि हम नादरा से रिपोर्ट लेंगे, इन लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे और इन सब के खिलाफ पर्चे काटेंगे। एक तरफ ये लोग हैं जिनके खिलाफ, सबके खिलाफ आप पर्चे काटोगे, दूसरी तरफ सोसाइटी के वो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जिनको आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम नहीं, आपके सामने बैठा हुआ है, फिर भी आप उसका नाम नहीं दे रहे। उसको बचाने के लिए एसएचओ उसको बैक डोर से निकाल देता है, उसको बचाने के लिए हर एजेंसी कोशिश ये कर रही है पर्चा ना दें इस पे, किसी और जुर्म में डाल दें, इस पे ना डालें, इसको पकड़े नहीं। व्हाई? दैट्स द रीजन दे आर मोर डेंजरस। आज इफ ही इज गोइंग टू गो स्कॉट फ्री, कल को वो 10 और जगहों पे यही करेगा और उसके तमाम दोस्त भी यही करेंगे, बिकॉज आप उनका कुछ नहीं कर सके। सो दिस इज अ बिगर प्रॉब्लम एज कंपेयर टू दोस्त पीपल। उनको तो पकड़ लेंगे आप, इनको पकड़ के आप छोड़ देते हैं। राइट। और जहाँ तक अवॉइड करने की बात है, लाइक पीपल हु आर प्रिविलेज्ड, दे हैव देयर ओन कन्वेंस, दे डोंट हैव टू गो थ्रू दिस। लेकिन जिसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी है, रोज़ का इधर उधर जाना है, how much they can avoid? नादिया, it's a very difficult, मजबूरी है, लोगों ने घरों से बाहर निकलने हैं, they have to do their jobs। उनको ये कह देना कि आप दूसरों को मौका ना दो, कैसे ना दो, आपके घर से ना निकलोगे, आप कैसे देखिए इस अंडर करंट सर्कमस्टांसेस जो सबसे अच्छी स्टेटमेंट आई, मैं ये कहता हूं कि व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टेटमेंट, वो जस्टिस मंसूर अली शाह की है, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। उन्होंने कहा कि इररिस्पेक्टिव ऑफ अ वुमन्स कैरेक्टर, कंडक्ट, इवन उसकी जो सेक्सुअल रेपुटेशन है कि वो कैसी है, किस तरह की है, किसी को कोई हक नहीं कि आप उसकी प्राइवेसी को इन्वेड करें, किसी को कोई हक नहीं कि आप उसकी तजलील करें। और ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि उसको भी, गवर्नमेंट और लॉ की ड्यूटी है कि आप उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब तक प्रोटेक्शन लोगों को नहीं देंगे, प्रोटेक्शन कहां से आएगी? सजा दें इनको, आप पकड़े हुए उनको छोड़ें। जब तक वो कोई भी शख्स है, वो ग्लोरिया जीन फेज 5 वाला है या मीनार पाकिस्तान वाला है, जब तक आप उसको सजा नहीं देंगी, जब तक आप जल्दी ट्रायल करके, स्पीडी ट्रायल करके उसको आप लोगों के लिए मिसाल नहीं बनाओगे कि you will be like this, you will be punished like this, if you are not going to do, नादिया, फिर लोगों में लोग सोचेंगे, जिनके पास जो प्रिविलेज्ड हैं, एक तो प्रेडेटर्स हैं, एक जो विक्टिम बने हुए, they will think Pakistan is not a place to be, let's go out of Pakistan। और जो इस तरह के लोग हैं, they will think oh it's a heaven, do whatever you want to do, you will go scot free। ठीक है, तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है और डर लग रहा है। अभी आई वॉज इन US एंड आई वॉज विद लॉट ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स ओवर देयर, जो कि पाकिस्तान इनको आए हुए भी आई थिंक मोर देन 2 decades हो गए हैं, बट एवरी वन इज़ लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस जस्टिस फॉर नूर, बिकॉज दे वॉन्ट टू नो कि यहाँ पे पाकिस्तान में जो अपर क्लास है, उसके अगर वो कोई क्राइम करेगा तो उसका रिज़ल्ट निकलता है। सो अगर आई थिंक हमने उसका कुछ अच्छा सेट कर दिया, सो पीपल आर लुकिंग फॉर इट कि वो क्या, वेदर ही कैन गेट अवे विद दिस और नॉट। सो वो बताएं क्या लगता है आपको? देखिए 2 चीज़ें हैं। एक तो मैं हमेशा पैरेलल ड्रॉ करके देखता हूँ। नूर वाला वाक़या जो है ये पहला वाक़या नहीं था। अगर हम पिछले 4-5 साल देखें तो हमें बेशुमार वाक़यात ऐसे मिलते हैं। अगर हम बहुत रीसेंट पास में भी देखें तो लाहौर के अंदर 2-3 मर्डर्स जो थी, इसी तरह उनका भी मर्डर हुआ, और उसमें भी जो लोग थे जो मुलज़म थे या जिनको नॉमिनेट किया गया, इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज थे। ये ज़रा ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल फैमिली से ये वाला सिलसिला था। कितने लोगों को सजाएं हुई हैं?
मैं दिस इज़ माई क्वेश्चन कि जो माजी का था ये हर चीज़ फिजल आउट हो जाती है विद द पैसेज ऑफ द टाइम। और जो सबसे बड़ी ज़्यादती है जो कि मैं एक्सपेक्ट करूँगा, आज मैं ये बात ओपनली ये कहना चाह रहा हूँ कि दिस इज़ अ चैलेंज फॉर नूर्स पेरेंट्स कि प्लीज़ आपने पीछे नहीं हटना। ट्रू। लॉ में क्या है कि लॉ ये कहता है कि दिस इज अ कंपाउंडेबल ऑफेंस। कंपाउंडेबल ऑफेंस ये है कि मर्डर तो हो गया, अगर आप उसके पेरेंट्स से आप उसको माफ करना चाहते हैं तो माफ कर दें, ना करें। वो आपकी बेटी नहीं थी, वो उन बेशुमार बेटियों में से एक थी जो सबके पेरेंट्स आपकी तरफ देख रहे हैं। मुझे लगता ये है कि आने वाले टाइम में अगले 2, 4, 5 माह में या मे बी साल के अंदर किसी स्टेज पे और उसके पेरेंट्स ये कहेंगे कि नूर तो चली गई बेचारी, ये था वो था, हम नहीं चाहते कि एक और माँ का बच्चा। भाई और माँ का बच्चा नहीं, इसको सजा दिलवाओ। आई एम फॉर दिस थिंग कि ही शुड बी punished to the maximum, whatever the penalty is going to be. उसके लिए सजाए मौत है, उम्र कैद है, जो भी है, he should be made an example. और जो नूर के पेरेंट्स मैं उनसे एक्सपेक्ट करता हूँ, the only thing मुझे लगता ये है कि कानून के रास्ते में जो वाहिद चीज़ इस वक्त रुकावट होगी वो उनके पेरेंट्स का आने वाले टाइम में कंडक्ट होगा। इफ दे रिमेन स्टेडफास्ट, आई बिलीव कि नोबडी इज गोइंग टू लेट देम गो स्कॉट फ्री। वन वेरी सैड पार्ट, अगर आप देखें जो मीनार पाकिस्तान वाला इंसिडेंट है, दोज वर ऑल स्ट्रेंजर्स, सो ऑब्वियसली आपको उनसे कुछ अच्छी उम्मीद की एक्सपेक्टेशन भी नहीं होनी चाहिए। बट इन दिस केस दिस वॉज हिज बेस्ट फ्रेंड, फैमिली फ्रेंड, सो कैसे आप इन चीज़ों से बच सकते हो? आपको यानी कि बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि अदर पर्सन कैन गो सो फार कि वो आपकी जान तक ले सकता है। तो एज अ वुमन क्या किस तरह आप जज कर सकते हो, या अपने लिए अपने आप को बचाने के लिए आपको सारा वक्त अलर्ट रहना चाहिए, क्या करना चाहिए? इसमें कसूर किसका है? मेरे नज़दीक ऐसे इंसिडेंट्स को अवॉइड किया जा सकता है जिसमें आपका पीयर ग्रुप जो है, आपके क्लोज फ्रेंड जो है, वो बेहतर रोल अदा करें। देखिए, किसी की टेंडेंसीज जो हैं वो ऑल ऑफ सडन इस तरह सामने नहीं आती हैं। अगर आपके कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, कोई और इश्यूज़ हैं, तो ये नहीं होता कि फ्रॉम नोवेयर एकदम, यस देयर आर सडन रिएक्शंस एट टाइम्स, लेकिन इस तरह की टेंडेंसीज जो हैं वो टाइम एंड अगेन देखी जाती हैं। मुझे लगता ये है, जो मेरी फीलिंग है, कि दी गाय वाज हाई ऑन ड्रग्स, और जब आप इस तरह की सिचुएशन में होते हैं उसमें मल्टीपल रिएक्शंस आपको मिल सकते हैं, आपको हो सकता है। और आपके तमाम दोस्तों को पता होता है, आई मीन लाइक मैं बेशुमार लोगों को जानता हूँ, हमारे पास लॉ के केसेस आते हैं जिसमें होता है कि यार ये बंदा था, ठीक था, नॉर्मल था, जब इसने कोक कर ली, जब इसने ही गॉट ड्रंक एंड ऑल दैट, उस वक्त ही लॉस्ट हिज कंट्रोल ऑन हिमसेल्फ, और इसने ये किया, ग्लास तोड़ दिए, उसको थप्पड़ मारा, उसको गालियाँ दी। बाई यू नो समबडीज बिहेवियर वंस ही गेट ड्रंक और ही इज ओवरडोज विद द ड्रग्स एंड ऑल दैट। आप अपने दोस्तों को अलर्ट करें कि डोंट मीट हिम और हर इन दिस काइंड ऑफ कंडीशन, अलोन स्पेशली। मेरा ख्याल है कि ये सबसे बड़े जो कल्प्रिट हैं इन दोनों के कॉमन फ्रेंड्स हैं, जिनको इन दोनों को वर्ड ऑफ उसे बताना चाहिए था कि ना मिलो इससे। ये बंदा जब अकेला होता है और ड्रग्स पे होता है, इसका ये रवैया होता है, ही गेट्स मैड, यू नो। और ये एक नहीं है नादिया, बेशुमार केसेस हैं, दोज गो अनरिपोर्टेड। हर रोज मैं देखता हूं और सुनता हूं, और जो हमारे हमारे बहुत से केसेस बिकॉज ऑफ आवर टीवी अपीयरेंस एंड ऑल दैट, लोग हमें रिपोर्ट करते हैं, पार्टी थी, ये हुआ, खत्म हुई, सुबह 4 बजे तक चलती रही, 4 बजे फलां ने फलां को ये कहा, फलां पे अटैक किया, गाड़ी मार दी। दिस इज एवरीडे सिचुएशन। Now it's very important कि आपका जो peer group है, they play a role in it, they alert each other. जब वो नहीं करते, these kind of incidents happen. I personally believe it's very important for us to remain alert. It is very important to choose right friend who be sincere to you. यहाँ पे तमाशा देखने वाले ज्यादा है ना। सेफ्टी के लिए सबसे ज्यादा आपका ग्रुप जो है आपको अलर्ट रहने पाकिस्तान में मैं ये बिलीव करता हूँ कि यू नीड टू बी एक्सट्रीमली अलर्ट विद राइट काइंड ऑफ पीपल, या फिर अपना एक्सपोजर मिनिमम रखें। बट इफ यू हैव एन एक्सपोजर, चूज राइट पीपल। जब आपके लोग आपका ठीक चॉइस नहीं होते, you always land into the problem and the trouble. और राइट पीपल की पहचान क्या होती है? कि वो ड्रग्स ना करता हो। हम इसे एक लॉ में एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, ड्यू डिलीजेंस। हाँ,
ड्यू डिलिजेंस का मतलब ये है कि आप देख लें ना, आप किसी तरीके से किसी को जानने का सबसे आसान तरीका ये है कि उसके पिछले 4-5 साल जो उसने कंडक्ट की है. अब मैं अगर किसी से बिजनेस करना चाहता हूं तो मेरी उसका पर्सनल लाइफ से तो ताल्लुक नहीं है. मैं उसके बिजनेस के हवाले में उसके जो 4-5 साल के कंडक्ट हैं, उसके जिन लोगों से उसने काम किया है, जिस बैंक को उसने डील किया है, जिन लोगों से उसने बाइंग सेलिंग की, उनसे बात करूं. मैं अगर एक पर्सनल रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए जा रहा हूं किसी से, तो मेरा पर्सनल रिलेशनशिप है, मैं पूछूं उसके दोस्तों से, यार ये कैसा है, ये कैसी है, गुस्सा करके कैसी करती है, या ये बंदा चीटर है या धोखा देने वाला है, या ये ऐसी जो बातें बता रहे हैं एग्जैजरेशन है इसकी बातों में, किस तरह का है. मतलब आपको पता होना चाहिए. डूइंग अ ड्यू डिलिजेंस हेल्प यू टू आइडेंटिफाई कि वो बंदा ठीक है कि नहीं है. ठीक है, अगर आप नहीं करेंगे तो आपको बेशुमार लोग हैं जो कि इस तरीके से फेक कर रहे होते हैं अपने आप को, और वो बहुत लंबा अरसा फेक करते हैं. आप उनको जज ही नहीं कर पाते, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि वो क्या है, एक्चुअली वो क्या है. डूइंग अ ड्यू डिलिजेंस इफ यू आर लुकिंग फॉर अ बिजनेस, a personal relationship, a serious friendship is very important. You know, nothing wrong asking from the people जो उसके साथ माजी में रहे हैं और किसी तरीके से ask him कि कैसा था, कैसी थी. It's going to help. You can judge a lot by looking at their ये social media के जो channels हैं. You can also judge a person a lot from that. पता चल जाता है. बताने वाले भी बेशुमार हैं, बेशुमार ऐसे forums बने हुए हैं जो लोगों को आप छोड़ते, you know, like they will put up all kind of gossips here and there. आपने वो देखा है वो gossip girl का आपने Instagram पे? नहीं. You must. मैं हैरान हूँ. अब we are going to start a campaign against them जो साइबर वर्ल्ड में है. They are doing lot of, by the way, काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें भी कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे they do the character assassination. This is not bad. That's bad. That's not allowed. So Gossip Girl Lahore is something जिसको हम ज़रा serious legal side पे लेके आना चाह रहे हैं. भाई लोगों की आप gossip करें, लोगों को आप alert करना चाहते हैं, आप लोगों को expose करना चाहते हैं, but in the process don't do the character assassination. You know, this is very important. No one has this right. This is very important. आपने ये कहा कि 4-5 साल का उस बंदे का conduct आप देख लें तो उससे बहुत कुछ पता चलता है. अगर आप जश्न आज़ादी का जब से पाकिस्तान आई थिंक आज़ाद हुआ है तब से देख लें तो उस दिन 14 अगस्त को बाहर क्या होता है ये हम सबको पता है. सो आई थिंक उसमें भी आप बच सकते हैं अगर आप उसमें बाहर ना निकले, बट दैट्स नॉट अ सोल्यूशन. आई मीन सोल्यूशन ये होना चाहिए कि आप निकलो बाहर और ये जो लोग हैं ये तमीज़ सीखें बजाय इसके कि आप हमेशा अवॉइड करते रहो. नादिया, सेलिब्रेशन का हमारा कॉन्सेप्ट ही डिफरेंट है. हमारा जो है वो डिफरेंट है. लिहाजा उस सेलिब्रेशन में जो जिस तरीके से मिसबिहेव लोग करते हैं, बेशुमार लोग हैं फैमिलीज वाले, दे गो साइलेंट, दे डोंट रिपोर्ट, दे डोंट स्पीक अबाउट इट. अब चूँकि ये आपने कहा कि जब से पाकिस्तान आज़ाद हुए, ये मोबाइल फ़ोन जो हैं ये तो अभी आए ना, जब हर किसी के पास कैमरा है और वीडियोस हैं. आज से 5-7 साल पहले तो लोगों के पास, या 10 साल पहले इतना फ्रीक्वेंटली ये चीज़ें नहीं होती थी. रिमेंबर क्या क्या हुआ होगा जो उस वक्त कैप्चर नहीं हुआ. True. कि लोगों के साथ क्या क्या बीती होगी. और आज के भी टाइम में, or probably they never talked about it because they didn't have any evidence. They did not. So it's a very difficult at time. मैं हैरान हूँगा. पिछले दिनों एक बच्ची का हैरेसमेंट का केस था और वो सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस था. उसने रिपोर्ट किया पुलिस को. पुलिस टर्न डाउन हर एप्लीकेशन. वो सिविल जज के पास गई कि जी मुझे फलां शख्स ने, एक स्टूडेंट है, लम्स का स्टूडेंट है, और उसने मुझे हरेस किया और सेक्सुअली हरेस किया. They asked, provide us an evidence. No, where to bring that evidence actually? मुझे एक बात ये बताएं कि आप किसी को किसी जगह पे मिल रहे हैं या बात कर रहे हैं, how to provide an evidence कि somebody has sexually assaulted you? एट टाइम्स बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. औरतें निकलती नहीं, निकलें तो फिर आपको, हमारा जुडिशल सिस्टम इस तरह के, आप उसको जस्टिफाई करना टू प्रोड्यूस एन एविडेंस बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट. बहुत सारे ऐसे अपहिल चैलेंजेस हैं जिसको अभी हमने, लेकिन जब तक हम बात देखें, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो थी उसकी हम बात करते हैं, क्या था फ्रेंच रेवोल्यूशन के पीछे? लोग बैठ के हर शाम अपने सोशल इश्यूज पे बातें किया करते थे. दे यूज्ड टू गो टू द कॉफी शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, टेबल पे बैठ के 4-4 घंटे बहस किया करते थे. बातें तो हमारे भी टॉक शोज पे बहुत होती है, हमारे सॉल्यूशन कोई नहीं निकलता.
नादिया, हमारे टॉक शोज में क्या है कि हमारे हम ये करते हैं कि शेम ब्लेम गेम जो है वो खेल रहे होते हैं। हमारे टॉक शोज में अनफॉर्चुनेटली क्या है, सियासत सियासत सियासत। कभी सियासतदानों से बाहर निकले ना, बिलावल ने क्या कर दिया, मरियम ने क्या कर दिया, नवाज शरीफ ने क्या कर दिया, इमरान खान ने क्या कर दिया। दीज आर आर टॉक शोज। हाउ मेनी टॉक शोज आर बीइंग कंडक्टेड अबाउट सोशल इश्यूज? यू लुक एट द रेशियो, देयर इज, यू वोंट फाइंड एनी। डू यू, मुझे बड़े से बड़ा टीवी चैनल ला के दे दें, मुझे बताएं कि उन्होंने तरबियत पे कितने प्रोग्राम किए होंगे पिछले 1 साल पे, उन्होंने एजुकेशन पे कितने किए होंगे, ठीक है, उन्होंने विमेन हैरेसमेंट पे कितने किए होंगे। दे से कि दीज प्रोग्राम डोंट सेल। इट्स नॉट सेलिंग योर प्रोग्राम, इट इज आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी जहां से यू मेक दैट मनी। प्लीज एलोकेट मे बी 10% ऑफ योर टाइम फॉर दीज सोशल इश्यूज। दे डोंट डू। For them, it is the political game, political issues which are more important. So you feel कि अगर हम इसके ऊपर बात करना शुरू कर देंगे more frequently, so it's going to help? It's going to be service. It's going to be help. देखो, बात ये है कि लोग माजी में पब्लिक अवेयरनेस के लिए सेमिनार किया करते थे। अच्छा। किसी एक सेमिनार में 50 लोग होते थे। यूज्ड टू से वेरी सक्सेसफुल सेमिनार, वी हैव स्पोकन टू 50 people and all that. Now, when you and I talk, it doesn't reach to 50 people. It reached to 50,000 people, or maybe even more. You know, when these people, they listen to us, they take an impression out of our conversation. If we talk logic anywhere, कोई एक आध पॉलिसी मेकर कहीं से सुन लेता है, इससे बड़ी सर्विस कोई नहीं है। You know, when our voices are being heard by this big number of the audience, it's a blessing. कि आज के दौर में जो प्लेटफॉर्म हमने इस तरह के क्रिएट कर लिए, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अगेन आप ये देखें कि बड़े से बड़े जो लोग हैं, दे आर टिकटॉकर्स, दे आर डूइंग प्रोग्राम्स, एंटरटेनमेंट, मजाक, हंसी। मकसद क्या है कि उनकी अपनी कवरेज माइलेज ज़्यादा हो, एक्सपोजर ज़्यादा हो, वो उनके वीडियोस ज़्यादा उस तरह से पॉपुलर हो। They are ready to do anything for viewership. Are they doing any service? Are they there to discuss anything serious? Zero. So I believe initiative like this on a regular basis is definitely going to help. अच्छा, मुझे ये बताएं, I myself really want to know कि ये जो मीनार पाकिस्तान में हुआ, इतने ढेर सारे लोग थे, like hundreds of people, इन सबको कैसे पनिश किया जा सकता है? हाउ कैन दे ट्रैक दैम, हाउ कैन दे पनिश दैम? और अगर ये ना किया गया तो आई एम प्रीटी श्योर कि सब लोग जो बाकी के लोग हैं इन फ्यूचर दे आर गोइंग टू डू मच बैड थिंग्स दैन दैट। और इतना हमारा नाम बुरा हुआ है कि एवरीवन टॉक्स अबाउट इट कि आप क्या जो पाकिस्तान है उसमें तो अगर वुमेन पब्लिक प्लेस में भी सेफ़ नहीं है तो फिर प्राइवेटली तो पता नहीं क्या उसके साथ होता होगा। सो इसके लिए क्या कर रहे हैं गवर्नमेंट? कुछ कर रही है? जी देखें, इट्स मच ईजियर दीस डेज। आज के दौर में लोगों को ट्रैक करना कोई मुश्किल नहीं है। वीडियोस में जिन लोगों के विजिबल फेसेस हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी ऐसी है कि नादरा से फ़ौरन लोगों को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। मे बी लाइक 200-250 बंदा आपको सारे ट्रेस ना हो सकें जिनके फेसेस उतने विजिबल नहीं है, लेकिन 60-70 तो बहुत आसानी से ट्रेस हो सकते हैं। डिजिटल एविडेंस जो है, जो कानून शहादत है, पहले उसमें नहीं था, लेकिन आज के दौर में डिजिटल एविडेंस इज़ एडमिसिबल। उसकी बेस पे किसी को सजा दी जा सकती है। तो इट्स अ वेरी सिंपल, आइडेंटिफाई पीपल विद द हेल्प ऑफ नादरा through IT apps and then punish them on the basis of the evidence which is a digital evidence. ठीक है, डिजिटल एविडेंस भी मौजूद है। जब लोग पकड़े जाएंगे तो वो जब उनके अपनी कन्फेशंस होंगे, स्टेटमेंट्स होंगे, दे विल बी गुड एनफ टू पनिश दीज पीपल। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि इस पूरे इंसिडेंट में कोई 40-50 लोगों को सजाएं ज़रूर होनी चाहिए, और अगर नहीं होगा तो मैं ये कहूँगा फिर नीयत ख़राब है गवर्नमेंट की और अदारों की। उनकी नीयत जो है, मुझे उस पर फिर शक होगा कि शायद दे वर नॉट डिटरमिन्ड टू पनिश देम, अदरवाइज कोई ऐसी हिंड्रेंस मुझे नज़र नहीं आ रही। थैंक यू सो मच अल्मास फॉर बीइंग हियर एंड लुक फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू अगेन। It will be my pleasure. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, viewers. I hope you like the show. Thank you.